Hello everyone, I'm Aditi from myonlineshiksha.com. I hope you're doing well and you're keeping safe. So today we're going to know what stock trading actually is. So let's meet Professor Naveen Verma who's going to talk on stock trading and the concepts. A very happy Diwali to you, sir. We're beginning with Diwali session. So Yeah, very yeah, happy yeah. Diwali to you. Yeah. I wish you as well a very happy Diwali and a very prosperous year ahead. Thank you so much, sir. So today we'll be talking about stock trading and your course that the SMAX that talks about the SMAX trading. So, sir, Sure. we'll begin by I'll begin by asking you a question. What exactly is stock trading? And if Mhm. students want to learn about stock trading, what is the ideal age that they should start? Okay. So stock trading is, consisting of two words. One is stocks and the second is trading. And Yes. trading, as you know, is the oldest profession in civilization. People have Okay. always Yes. been buying things when the prices are low and selling when it's high. They're also Yes. taking advantage of scale. So they can buy a large quantity and then sell in small pieces and then, Right. and take advantage of the price differential. So Right. if you remember, our crops are always in a season. So over the year, there are seasons when the harvest is there. Okay. Right. So when the harvest comes out, the prices are very low and good quality is available. And then the season changes, there is no crop supply, and then the prices go up in that Right. time window. And that's what a lot of traders are always been doing. But now we are talking about stock trading. So Yes. concept is the same, that you try to purchase a stock which you believe is going to sustain and is of good quality Okay. at a time when the prices are somehow low because of some environmental factors. So as you Okay. know, whenever there is a global event, the sentiment of the people actually gets negative for a time being. As you can Fair. see in COVID environment, everyone was very pessimistic in February, March, April. But now, Yes. after 3 months or so, 6 months have passed, now people are recovering in their thinking, in their attitude about what can be done, what cannot be done. So similarly, that sentiment of people is reflected in stock market. The people were not willing to buy stocks at high prices when the overall sentiment was low. And now they are becoming more confident, more bullish, and they are able to pay more money for good quality Yes. stocks. So if True. someone would have, purchased when the prices were low, and due to global environment, if the prices have fallen low, एक temporary phase की तरह से हाँ. prices बीच में नीचे चले जाती हैं. So in that time, if you purchase a stock, then you can take advantage of that environment by getting it low and then selling it later at a higher price. तो स्टॉक मार्केट में हमेशा एक जो ट्रेडर होता है वो इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है. He waits for that opportunity when the prices somehow are appearing very attractive and people have become unreasonable with the pricing. So while everyone is unreasonable, you try to look at a long-term perspective and take a wise decision of investing money and then holding on to your stock and waiting for the better times to return. Now this kind of psychology can be for a longer term, like few months, or the same psychology in fact holds true at a day level itself. Between morning till evening, the market's prices are also swinging, and if you find the price of a stock is low for some reason during the day, that time also you can pick it up and cash it later on when it is convenient. So there is no hurry. You can take your time, and that's how people get into trading and make money. Okay. So yes. So perfect, sir. And I think the second question you asked me was around the age of people, right? Yes, sir. Yes. Right. Age in trading, it's a very basic and simple philosophy. Actually, it's not very complicated.
Okay. So there is no real challenge in terms of understanding what has to be done. It takes some time, Okay. little bit of training, but then once you understand, it's becomes simple. And anybody who has done at least 12th standard of education, he is in that kind of a IQ and analysis ability that he can, with simple maths, plus minus division, and calculating how much is the profit, how much is the risk. That is all you try to do in stock trading. And from that perspective, I guess, just like any other hobby, after somebody has finished 12, he can start becoming a bit more organized and developing this as a hobby initially. And once he sees that this hobby has matured, you can go professional. Okay, wonderful. So, sir, a lot of people have talked about stock trading, but they usually refrain from, getting into stock trading because of the risks that are involved. And whenever money matter comes into picture, there's always risk involved. But maybe people think that risk is higher when you go into stock trading. But sir, what do you want to say about it? Will you assure these people that there'll be no risks, or what advice will you give these people who are actually very afraid to get into it? Okay, so for managing risk in stock market or any business, you can open a bakery shop and you might say कि ये फेल हो गया, बेकरी का बिजनेस फेल हो गया, मैंने तो सोचा था आई विल गेट लॉट ऑफ मनी, बट द बेकरी डिड नॉट रन. So how do you manage the risk of a bakery business getting started in a neighborhood? So you always like to start small. That is one thing. You don't want to invest crores of money in a shop. You want to start simple and see how it is going. And based on the profits you earn, you return the profit to your business, invest more profits back into your business and let it grow. इसके लिए एक और टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी. स्वेट इक्विटी जो स्टार्टअप्स के अंदर बहुत कॉमन वर्ड होता है. जो स्टार्टअप नया कोई भी चालू करता है, तो पीपल से दैट वी विल ग्रो अवर बिजनेस विद स्वेट इक्विटी. स्वेट मींस पसीने की कमाई, राइट? ओके. शुरू में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी को भी नहीं करना चाहिए, पहली बात ये. लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि उनको उसमें थोड़ा इनिशियली पैसा दिखता है, सो दे से कि लेट मी पुट मोर मनी सो आई विल गेट मोर रिटर्न्स. And that is where they get stumped. Also, before training, if you increase your skill, you have to take training. You have to learn the trade. Then only you will actually be confident. जैसे स्विमिंग पूल में किसी को आप एकदम से छलांग लगा दीजिए और फिर उम्मीद करिए कि वो तैर के बाहर निकल जाएगा, तो ट्रेनिंग तो लगेगी, राइट? ट्रेनिंग जरूर लगेगी. सो सबसे पहले जो काम करना चाहिए, वो आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ट्रेनिंग कोर्स जरूर ले लीजिए. और ट्रेनिंग कोर्स ऐसी जगह से लीजिए जहाँ की पूरा रास्ता आपको दिखाए. ये नहीं कि थोड़ी सी कहीं इंफॉर्मेशन कोई यूट्यूब चैनल देख के और कोई चमत्कार किसी ने दिखा दिया और आप कूद पड़े. ये बहुत बड़ी रिस्क है कि लोग यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख के सोचते हैं कि हमें आ गया, राइट ना? So वो नहीं करना है. We have to take a course. We should do a course, not just some small. किसी ने कोई इंडिकेटर दिखा दिया, किसी ने कोई कह दिया कि आज मैंने 10-20 हजार कमा लिए, तो सिर्फ उतना ही दिखाते हैं वो लोग और आपसे कहते हैं कि अब आप आ जाइए आगे. तो ये गलती सबसे बड़ी गलती है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं. और इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ सीरियस न्यू हॉबी एंड लर्निंग, दे गेट इट जंप लगा देते. So we should avoid that. So that is the second thing. Start small is the first thing. Second is take training. And third is trading में कुछ basic rules हैं. किसी भी trading में basic rules हैं. वो basic rules ये हैं कि आप कितना investment करेंगे. आपके पास हो सकता है आपके पास 5 लाख रुपए रखे हुए हैं स्प्री for anything. तो क्या हम 5 लाख से ट्रेडिंग शुरू करेंगे या 50,000 से शुरू करेंगे? तो ये एक कैलकुलेशन है, एक कॉमन सेंस है जो कि हम ट्रेनिंग कोर्स में कवर करते हैं कि व्हाट शुड बी योर लिमिट टू स्टार्ट. और दूसरी बात ये है कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं जी, तो हम लोग ऐसे जनरली कोई भी ट्रेड नहीं ले लेते कि मार्केट में गए और कुछ खरीद लिया बेच दिया. ऐसा नहीं. हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं
टेक्निकल एनालिसिस मतलब उसका जो ट्रेंड है प्राइस, वो चेक किया जाता है कि किस तरह से ये प्राइस चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो जैसे एक समुद्र में आप देखते हैं ज्वार और भाटा आता है, tides come and Tides, go. highlights to it, yeah. So if you know the tide, which way it is going, आप भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, आपकी स्पीड अच्छी होगी। अगर आप टाइड के अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो टाइड पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे समुद्र में टाइड पहचानता है आदमी, बिकॉज एक्सपीरियंस से वो जान जाता है कि ये 15 दिन समुद्र आगे आएगा और ये 15 दिन पीछे जाएगा। हाँ। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो उसके चार्ट्स हैं, जो उसके ट्रेंड लाइंस हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। वो ये सजेस्ट करें कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे आ रही है। तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी शुड टेक अ ट्रेड इन दैट डायरेक्शन। If it is going up, we should take a trade in upside. If it is going down, we should take a downward trade. So अगर उस कुछ रूल्स को ध्यान रखेंगे जिसको बोलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग, ट्रेड विद द ट्रेंड। तो अगर हम वो रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो फिर हमारे को नुकसान का तो चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ओके, तो सर वी हैव टू वेट, वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। तो उसके लिए हमारा जो कोर्स है उसमें ये कवर होता है। अच्छा सर, वही मेरा नेक्स्ट वही क्वेश्चन था कि अगर इतना इम्पोर्टेंट है टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, तो हाउ कैन वी लर्न द एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड हाउ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स, हाउ दे प्रोवाइड दीज लर्निंग्स? यस, सो एक्चुअली करीब 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और ट्रेडिंग का जो मैंने स्टार्ट किया था लर्न करना करीब 10 साल पहले स्टार्ट किया था। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल टू लर्न, बिकॉज आई वाज लकी इनिशियली, आई वाज वेरी लकी इनिशियली, सो आई थॉट दैट दिस इज समथिंग ग्रेट, लेट मी लर्न इट, लेट मी नॉट जंप बट लर्न इट। सो आई वाज लर्निंग एंड ट्राइंग टू फाइंड वेयर टू लर्न, एंड आई फाउंड दैट the easiest channel that is available for learning is YouTube. Correct. But I did not find a single training program which will train me from zero to success. Every program was always a piecemeal. Even now, if you go on YouTube, you will find piecemeal information, and that's why it is not very attractive. Second problem that I have observed is that some people want to give a training program, but it is so costly. Right. Even before you can judge whether this program will give result, upfront you have to commit so much money to learn, and that becomes a challenge, because if there are 3 options and they are all asking you for paying 50,000 or more, how can you make that payment? अभी तो आपने सीखा भी नहीं है, अभी तो आपको पता भी नहीं है कि आप सीख पाएंगे या नहीं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई सीख नहीं पाता। एंड रिजल्ट ये होता है कि वो जीरो पे ही रह जाता है, और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग लगे रहते हैं। जो लोग लगे रहते हैं वो बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है, कई बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कई जगह समझने की कोशिश करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट खुद करना पड़ता है मार्केट में। आफ्टर 5 or 6 years you can learn. 5 or 6 years of experimentation, you will find out what it is not and what it is. Okay. So ये एक जर्नी है जो कि बहुत लंबा टाइम लेती है अगर आप खुद डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आफ्टर 7-8 years ये रियलाइज किया कि अगर कोई सीधा सीधा रास्ता कोई बताने वाला मिल जाता तो बहुत एफर्ट बच जाता, बहुत एक स्ट्रेस बच जाता। लेकिन संभव नहीं है मार्केट में इस तरह का कोई ऑप्शन जो कि सस्ता भी हो और पूरा एक कोर्स की तरह से आपको तैयार कर। तो वहीं पे मैंने अपना जो ये ट्रेनिंग कोर्स डेवलप करने की सोची थी कि एटलीस्ट आई कैन शेयर व्हाट इज फ्रॉम द जीरो टिल सक्सेस, व्हाट इज द वे, और हैंड होल्ड करके आदमी को पहुंचाया जा सकता है। तो उससे क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि साइड में बैठे हैं अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और एक टाइम भी नहीं होता लोगों के पास सीखने का या एक्सपेरिमेंट करने का, और इतने साल लगते हैं, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। और यही एक हमारे जो कोर्स जो मैंने डेवलप किया उसका सबसे बड़ा वैल्यू है कि आप
सीधे और सिंपल शब्दों में यू कैन रीच फ्रॉम जीरो टू अर्निंग मनी। जी जी। तो सर आपने ये हमारे माया ऑनलाइन शिक्षा पे जो आपका कोर्स है, तो उसमें क्या एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं? ऑफ कोर्स फ्रॉम स्क्रैच आपने सिखाया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है, क्योंकि कहीं नहीं मिलता है, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। बट अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने क्या एस्पेक्ट्स कवर किए हैं ये कोर्स में? हाँ, तो सबसे पहला तो ये है कि माय ऑनलाइन शिक्षा जो प्लेटफॉर्म है, आप इसका नाम देखिए, एक तरफ माय ऑनलाइन लिखा है एंड देन आफ्टर दैट इट इज शिक्षा, व्हिच इज अ हिंदी वर्ड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम भी अभी जैसे बात कर रहे हैं, वी ऑल टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल। इंडिया में भी क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है, तो दो लैंग्वेज होना जरूरी है, यू नो, सो दैट all kinds of people can understand, whether somebody is from south or who is not able to understand Hindi very well, or somebody is from north who is not able to understand English very well. Both type of people should be able to get grasp the subject. So जो कोर्स है वो हमने बाइलिंगुअल रखा हुआ है, बेसिक कोर्स जो है वो बाइलिंगुअल है। So every slide which is there has English and Hindi together. Okay. So that either you can pick and choose. You can read English or you can read Hindi. At least these two languages are available. Right. Secondly, the way I'm delivering right now, same pattern I'm delivering in the videos also. It is bilingual, and therefore एक ये सबसे बड़ा यूनिक चीज है कि हमने बाइलिंगुअल रखा है। दूसरा, हमने माय ऑनलाइन शिक्षा जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड एक अप्रोच है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक लंबी कहानी सुनने की जरूरत है, आप उस कहानी को 6 छोटे टुकड़ों में सुनेंगे और कहीं पे भी रुक सकते हैं, कहीं से वापस शुरू कर सकते हैं। वो वीडियोस, वो सेशंस आपके हाथ में, तो यू कैन प्लान कि कब कितना टाइम देना है। चाहे आपको शाम को फ्री टाइम हो तब देख लें, चाहे दिन में देख लें, दैट्स योर चॉइस। लास्ट में हमने ये जो कोर्स बिल्कुल बेसिक अप्रोच से आगे ले गए हैं, और लास्ट में हमने एक छोटा सा क्विज एग्जाम भी रखा है, ताकि जो आदमी देख रहा है या जो लेडी देख रही है उसको भी एक ये फीडबैक मिल जाना चाहिए कि अभी मेरे को एक बार वापस जाने की जरूरत है या नहीं। लर्न अगेन। इसका ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको कितने मार्क्स आ गए। क्विज इज सिंपल, बट द आइडिया इज सेल्फ चेक, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड आपको एक बार और कुछ समझने की जरूरत है या नहीं है। इसके अलावा जो फैकल्टी है उसका कांटेक्ट अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो अगर कोई भी क्वेश्चन होएगा या क्वेरी होगी तो इट विल बी रूटेड बैक टू अस एंड वी कैन कनेक्ट बैक विद द स्टूडेंट एंड गिव क्वेरी सपोर्ट। और ये ओवरऑल जो है ये बहुत मैनेजेबल सा कोर्स है, मतलब टाइम वाइज भी आपकी चॉइस है और बहुत ज्यादा लंबा कोर्स नहीं है। इट टेक्स ओवरऑल मे बी 4 या 5 दिन अगर आप नॉन स्टॉप देते हैं तो आप बेसिक कोर्स कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से करीब 3-4 वीक्स में अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट करिए और उसको रिपीट कर लीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको हो सकता है कुछ देखने के बाद में आप मार्केट जाके देखना चाहें कि जो हमने पढ़ा है वो वाकई मार्केट में रियल टाइम में कैसा दिखता है। जी। तो आपको थोड़ा टाइम अपने हिसाब से और देना चाहिए कोर्स को पूरा समझने के लिए। और इन एनी केस फैकल्टी सपोर्ट इज अवेलेबल, तो फुल सपोर्ट इज अवेलेबल राइट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हमने कोर्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला जो है वो बेसिक कोर्स है, तो बेसिक कोर्स जो लोग कंप्लीट कर लेंगे उनको हम एडवांस कोर्स ऑफर करेंगे, तो वो पार्ट 2 हो जाए। तो बेसिक तो कम से कम पहले कवर करना ही है। वो कवर होने से आदमी को ये पता चल जाता है कि वो जो सीखने जा रहा है वो क्या है और उसके लायक है या नहीं है। ये सारे डिसीजंस वो इमीडिएटली कर लेता है और उसके बाद में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि थोड़ा सा एडवांस जो लर्निंग करनी है वो भी ले सकता है। तो सेकंड पार्ट में एडवांस कोर्स होएगा, और एडवांस कोर्स में भी वैसा ही छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, 6-7 मॉड्यूल्स हैं, और सब जगह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि मार्केट में एक्चुअली दिखता है वैसा ही पिक्चर्स हैं उसमें। और एंड ऑफ द कोर्स अगेन देयर इज अ क्विज एंड गाइडेंस इज अवेलेबल।
तो ये बहुत कन्वीनियंट वे ऑफ लर्निंग रखा है। मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, तो एक बड़े MBA इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को टीचिंग के लिए टाइम लगता है और उनको किस तरह से कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, किस तरह से समझ में आएगा, उसी अप्रोच से ये कोर्स को भी बनाया गया है। सो आई होप इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर एनीवन टू टेक इट। It will definitely be, sir. So आपने जैसे कहा कि ये काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और जो एनरोल करेंगे उनको बहुत फायदा होगा, बट सर जो एनरोल करते हैं वो बेसिक उनका मोटिव होता है टू अर्न मनी, कि इसमें जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उतना या थोड़ा उससे ज्यादा मिल गया तो ठीक ही है। तो सर ये अर्निंग पॉसिबिलिटीज के बारे में आप क्या कहेंगे स्टॉक ट्रेडिंग में? ओके, सो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि जो कोर्स के लिए आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक नई हॉबी सीख रहे हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमल है। इट इज नॉट इवन 1000 रुपीज, तो इट इज वेरी मिनिमल वे ऑफ स्टार्टिंग टू लर्न। जैसे आप जाके मार्केट में बुक खरीद लेते हैं, बुक छोड़िए, आप कहीं मार्केट में जाके डिनर कर लेते हैं, कितना खर्चा होता है अगर एक डिनर फैमिली के साथ कर लेते हैं, तो उस रेंज में तो आप एक हॉबी सीख रहे हैं। तो ये जो हॉबी सीख रहे हैं उससे आप लाखों भी कमा सकते हैं कल को। तो एक डिनर जितना इन्वेस्टमेंट तो आदमी अपने लर्निंग के लिए कर ही सकता है। तो एक तो ये है कि पहला एस्पेक्ट के लर्निंग में कितना इन्वेस्टमेंट है या खर्चा है, तो वो बहुत रीजनेबल है। नंबर 2 आता है कि जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है या रिस्क का जो परसेप्शन माइंड में रहता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो भी आदमी ये स्टार्ट करता है या जो भी लड़की ये स्टार्ट करती है लर्न करना, तो उनको ग्रेजुअल अप्रोच से बढ़ना है। सो दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ दिस इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर मी टू विन और लूज। तो उस हिसाब से हम उसको स्केल करेंगे डाउन कि हम चाहें तो हम एक दिन में 100 रुपये अर्न कर सकते हैं, चाहे तो हम एक दिन में 1000 रुपये भी अर्न कर सकते हैं। जो रूल्स हैं लर्निंग के और ट्रेडिंग के सेम हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप बहुत कम अमाउंट से बिजनेस सीख सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप कौन सा बिजनेस खोलेंगे? कोई बिजनेस नहीं खोल पाएंगे, लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप 1000 से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सबसे लो एंट्री बिजनेस ऑप्शन है। जो कहते हैं ना कि बिजनेस के लिए पैसा बहुत चाहिए, तभी बिजनेस खोल सकता है। कोई दुकान भी खोलेगा, कुछ भी करेगा तो उसको हजारों में चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपका पॉकेट मनी से ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक लो एंट्री ही रखनी चाहिए और वो बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को आप अपने बिजनेस में ऐड करते रहिए, कैपिटल को। दैट इज द बेस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस। So I don't advise to start with 1 lakh rupees. I advise you to start with 5,000 rupees. Okay. As a starting capital. और उसी को आप देखिए कि कैसे आगे बढ़ता है और उसके हिसाब से आप उसको डबल करिए, ट्रिपल करिए, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। Okay. Thank you so much, sir. I think you've answered every question appropriately and जो भी हमारे viewers होंगे शायद आपकी बातें सुन के इन्वेस्ट करना चालू करेंगे या फिर एटलीस्ट कोर्स एक बार पढ़ लेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड आई होप आपके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Yeah. It was a wonderful experience for me to connect with you and answer your questions. Because your questions were also very appropriate. They were representing what kind of questions students tomorrow can have. Whoever takes the course can have. So I got a chance to explain in another way. Thank you so much for giving me your time also. Thank you. Bye. Thank you so much, sir. So, sir, for my viewers, I would just like to say that the video will be on the Facebook and the YouTube portals of My Online Shiksha. So if you have any queries, as sir also said, if you have any queries, the faculty number is also given in the course and you can also ping us on Facebook and YouTube. So thank you so much and a very happy Diwali to you all. Thank you so much.